Hello, dear friends. You all welcome back to Bodulwar Academy. From this video, we are going to start class 9, chapter 2 from the NCERT and CBSE board, polynomials. Before going to discussion on the polynomials, we are going to discuss what is algebraic expression and equation. See, I am going to write the example. First of all, 2x plus 3 and the second 2x plus 3 equals to 0. Now see, among this, which of the algebraic expression and which of the equation? Now see, in the first case, there is absence of a big measure, that is the equality sign. That's why if there is an absence of equality sign, that is called as algebraic expression. But now see here, you can see there is equality sign and on the right hand side something 0. Oh, that means equality sign, left hand side and right hand side combines the equation. What is in the middle? Equality sign, and on the left hand there will be expression, constant or anything, okay, or on the right hand side there will be the expression or constant, okay. Here is a 0, no problem, okay, but LHS or RHS में कुछ ना कुछ रहना चाहिए. It is called as equation. And it is called as what? Algebraic expression. Oh, okay. This is the major difference. And now see here x is unknown. Okay, due to equality sign, I am able to find this unknown x. How? Now see, 2x, I want to find that x. That's why I shifted plus 3 on the right hand side and becomes minus 3. Therefore, x equals to, I can write minus 3 by 2. Now, I am here find the unknown value x, but is it possible to find the unknown value x? No. This is also the big major difference between the equation and expression, where you are unable to find the unknown x, that is called as the algebraic expression, but where you are able to find the unknown value, that is called the what? Equation. Okay, this is the big differences in algebraic expression and equations. Now see, in this chapter we are going to see polynomials in one variable. Polynomials in one variable. Now, what is variable and what is constant? We will discuss on this. Now see, if I consider a square having a side 4, okay, then I want to find the perimeter of this square. Then how can I find? Oh, I know the side. What is the length of the side? 4. Okay, 4 unit, it may be centimeter or whatever. Okay, now see, I am multiplying 4 times because I know square has a 4 sides. That's why 4 into 4, 16. But okay, this is the first case. Now see the second case, where the side of the square is given x. What is the side of the square is x. Then if I want to find the perimeter, I am going to multiply x by 4 because the 4 is the number of sides of their squares, therefore equals to 4x. Now see here, in this case, okay, I know the values. मुझे पता था कि भाई साइड की जो भी लेंथ है कितना था, 4 यूनिट था, और यहाँ पे क्या था, x अननोन था. ओहो, यानी कि जो चीज़ आपको नोन रहेंगी, जिसकी वैल्यू आपको पता रहेंगी, वो क्या कहलाएगा? कांस्टेंट. और यहाँ पे x क्या था?
अननोन, एक्स कुछ भी रह सकता, 2 3 समथिंग यूनिट. ओके, द अननोन, द वैल्यू यू डोंट नो, दैट इज कॉल्ड एज वेरिएबल. हियर एक्स इज व्हाट, वेरिएबल. ठीक है भाई, आपको कांस्टेंट और वेरिएबल में भी डिफरेंस समझ में आया. अब देखिए, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू, हमको सीखना है कि पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल. नाउ सी, अब देखिए मैं कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखता हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल 2x² y प्लस जेड, एंड नाउ सी 3x प्लस 2, 3y प्लस 2y, 3z प्लस 3 टाइम्स x y. नाउ सी, अब देखिए, ओके, पहला पॉलिनोमियल देखिए, सॉरी पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखिए, जिसमें x, y और z कितने अननोन वेरिएबल से, 3. सेकंड इसमें ओनली x, थर्ड इसमें भी ओनली y. ओके, और फोर्थ इसमें z x y. ओहो, अब देखिए इसमें कितने हैं, 3, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 3. ओके, तो हमको इस यूनिट में सीखना है कि ओनली इन वन वेरिएबल, यानी कि दिस इज एंड दिस इज ओनली वैलिड, दिस इज नॉट. ओके, टू दिस जस्ट चैप्टर. ओके, अब देखिए, अब ये जितने भी मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखे, उनमें जो अननोन वेरिएबल्स है उसके एक्सपोनेंट देखिए. जैसे कि यहाँ पे x का एक्सपोनेंट यानी कि जो भी अननोन वेरिएबल्स रहते हैं ना, उनके पावर्स. अब देखिए, यहाँ पे x का एक्सपोनेंट क्या था, 2. यहाँ पे y का क्या था, कुछ नहीं, यानी कि क्या, 1. यहाँ पे क्या था, 1. यहाँ पे भी 1 था. और एग्जांपल्स देखेंगे कुछ हम, x³ प्लस 3 टाइम्स y पावर 4. ओके, 4y पावर 8 प्लस 3y पावर 9. ओके, अब देखिए इनमें भी देखिए, जो भी यहाँ पे x का एक्सपोनेंट क्या था, 3, y का 4, y का 8, y का 9. यानी कि इन सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक चीज़ आपने नोट की होंगी कि जो भी अननोन x वेरिएबल्स है, उनके जो एक्सपोनेंट्स हैं ना, वो कैसे हैं, होल नंबर्स. कैसे है, होल नंबर्स. अभी देखिए, इससे ही पॉलिनोमियल की डेफिनेशंस बनती है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक expressions an algebraic expression having unknown variables exponent are in whole numbers. Such a form of algebraic expression is called as what? Polynomials. What? Polynomials. An algebraic expression having unknown variables, जैसे कि x y. ओके, अननोन वेरिएबल्स का एक्सपोनेंट यानी कि पावर आर इन होल नंबर्स. क्या थे ये सभी? होल नंबर्स. सच अ फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नोन एज अ पॉलिनोमियल्स. अब देखिए, इस पॉलिनोमियल में 2 वेरिएबल थे, x और y. इस पॉलिनोमियल एक ही था, तो हमें इस यूनिट में ओनली 1 वेरिएबल का पढ़ाई करना है. जैसे कि इज इट वैलिड फॉर दिस चैप्टर, ये ठीक है भाई, यहाँ पे तो एक ही वेरिएबल था. ओके, पॉलिनोमियल की अब डेफिनेशन आपको समझ आई, और हमें ऐसे पॉलिनोमियल सीखना है जिसमें ओनली 1 वेरिएबल रहेगा. जैसे कि 3x प्लस 2 टाइम्स ओके, जैसे कि 4y प्लस
3y², ओके, 5z³ प्लस 2 टाइम्स z प्लस 2z², ओके। अब ये जो है, ओके, देखिए एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ओके, हैविंग अननोन वेरिएबल्स है, और उनका जो एक्सपोनेंट है, जैसे कि यहाँ पे 1 था, वो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, वो क्या है, सभी होल नंबर्स। सच अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर कॉल्ड एज अ पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स, polynomials in one variable, because throughout this algebraic expression, that algebraic expression having only one type of polynomials। अब देखिए इस algebraic expression में कितने टर्म्स है, 3x एक अलग टर्म हो गया, 2 एक अलग टर्म हो गया, इसमें भी 2 टर्म है, 4y 3y², इसमें 1 2 3, okay, these polynomials having a 2 terms, okay, and this polynomials is made up of also 2 terms, but this polynomial is made up of 3 terms। Now see, each and every terms of polynomial having a something coefficient, जैसे कि ये पहला इक्वेशन जिसमें 3x ये पहला टर्म है और 2 दूसरा टर्म है। अब देखिए कोएफिशिएंट मीन्स व्हाट, जो भी वेरिएबल रहता है उसको मल्टीप्लिकेशन में जो भी रहेगा उसको क्या कहते हैं हम, कोएफिशिएंट्स। नाउ सी व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x हियर, 3। ओहो, अब यहाँ पे तो कांस्टेंट है, लेकिन आई कैन राइट 2 into x power 0। नाउ सी, एंड x power 0 इज हाउ मेनी बेटा, 1, ऑलवेज 1। x पावर 0 क्या रहता है, 1, यानी कि मैंने 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया था और 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, x पावर 0। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 0 इज हाउ मेनी, 2। ओहो, हियर आल्सो व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ y, 4, एंड y² 3, z³ 5, z3, z² 2। ओहो, यानी कि each and every terms in a polynomial having something coefficients, up to this you don't have any problem। Now see अब देखिए मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ, जैसे कि 5 2 -7, is it a polynomial? Yes sir, why it is not polynomial, it is called as a constant polynomial, it is called as constant polynomial। ओके, और देखिए इज 0 इज अ पॉलिनोमियल, है क्या, यस, इट इज कॉल्ड एज 0 पॉलिनोमियल, it is called as 0 polynomial। ओके, आ गया आपके ध्यान में, आ गया कि कांस्टेंट जब रहेंगे तो उनको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर 0 रहा तो उसको हम भी क्या कहते हैं, 0 पॉलिनोमियल। गर्ल्स, आर यू स्लीपिंग? बॉयज, डोंट स्लीप, you don't have to sleep। Now see, I am going to write some examples and tell me, is it a polynomial or not? Root of x plus 2x। देखिए, अब देखिए ये पहला एग्जाम्पल, x प्लस 1/x कैन बी रिटन एज x पावर -1। ओहो, लेकिन पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या कहती है, जो भी अननोन वेरिएबल रहता है x, उसका एक्सपोनेंट कैसा चाहिए, होल नंबर, एंड -1 इज अ होल नंबर, नो सर, इट इज अ नेगेटिव इंटीजर, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके, अब देखिए ये सेकंड एग्जांपल, रूट ऑफ x कैन बी रिटन एज x पावर 1/2 प्लस 2 टाइम्स x, इज इट अ पॉलिनोमियल? नो सर, व्हाई? बिकॉज x पावर half is a rational number, not a whole number, that's why such a type of examples, okay, having a not whole number exponent are not a polynomials। okay, अब देखिए, अब जो भी हमने पॉलिनोमियल सीखे थे, ओके, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, अब उनका यानी कि उनका नोटेशन कैसा रहेगा, उनको कैसे डिनोट करेंगे, ओके, तो देखिए
Now see how to denote the polynomials. If I take example of a polynomial, that is 3x square plus 2x plus 2. Okay, it is a polynomial in variable x. Now I can denote this polynomial like p of x. Okay, because this polynomial contains only the x variables, that is why p of x or q of x, any alphabet you can choose of r of x, कोई भी पॉलिनोमियल के लिए अल्फाबेट आप ले सकते हो. अब देखिए जैसे कि सेकंड एग्जांपल 3y स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स y प्लस 6. ओके, अब देखिए इसको कहाँ से कैसे डिनोट करेंगे. यहाँ पे x था, इस पॉलिनोमियल में x वेरिएबल अननोन था, इसलिए यहाँ पे x लिया. तो इसमें क्या अननोन है बेटा, y. दैट्स वाई p ऑफ y और q ऑफ y और r ऑफ y है ध्यान में. तो दिस इज द ओके, ऐसे डिनोट करता है. अब देखिए, अब सीखिए मोनोमियल्स. व्हाट इज मोनोमियल्स. अब देखिए, अब हमने पहले ही सीखा था कि पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स, 2 टर्म्स, 3 टर्म्स रह सकते हैं. अब देखिए, अब polynomials having only one term, such type of polynomials called as monomials. Polynomials having only one term, such a type of polynomials are called as monomials. For example, 3y square. Yes, it is a polynomial because the unknown exponent having a whole number. No problem. But it is which type of polynomial? By monomial, because polynomial having only one term. Or 2x square, 3z square, 3z cube. These are all the examples of monomials. Now see binomials. What is binomials? ये तो आप भी अनुमान लगा सकते हो कि binomials क्या रहेगा बच्चों. Binomials. Polynomials having mono means 1 and bio means 2, having 2 terms. Such type of polynomials are called as binomials. सिंपल है भाई. ओके, जिस पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स रहेंगे वो क्या कहलाएंगे, बायनोमियल्स. फॉर एग्जाम्पल 2x क्यूब प्लस 2x. ओके, 2 टर्म्स थे. ओके, पॉलिनोमियल तो है. अब देखिए सेकंड प्रॉब्लम 3y प्लस 2y क्यूब. This is also binomials because they have only 2 terms but in one variable. ये ध्यान में रखना. ओके, हम क्या ले रहे हैं, वेरिएबल एक ही ले रहे हैं. ओके, क्योंकि हमें वही पढ़ना है इसमें. ओके, ओनली 1 वेरिएबल्स. नाउ सी द थर्ड वन क्या रहेगा, आपको ही पता है. ट्राइनोमियल्स. पॉलिनोमियल्स polynomials. Come on. Having 3 terms. How many? 3 terms. Such a type of polynomials are called as trinomials. सिंपल है भाई. एग्जाम्पल देख लीजिए. 3x स्क्वायर 2x प्लस 2. यस,
It is a trinomials because polynomials contain the three terms. अगर और दूसरा एग्जांपल देखिए 2y प्लस 3y स्क्वायर प्लस 9y क्यूब, ओहो दिस इज ऑल्सो द ट्राइनोमियल्स बिकॉज इट हैज अ थ्री टर्म्स. तो ये भाई सिंपली क्या था, ट्राइनोमियल्स, बाइनोमियल्स और मोनोमियल्स. लेकिन सिंगल वेरिएबल देखिए, इसमें y है, इसमें x है. क्या चाहिए हमें, ओनली सिंगल वेरिएबल्स, क्योंकि हमारा एम ही वही है कि पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल वी आर डिस्कसिंग. ओके, अब देखिए व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. ओहो भाई नया सवाल है, क्या है, व्हाट इज द डिग्री, कॉलेज की नहीं भाई, पॉलिनोमियल्स की. व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स. नया है भाई, ये तो अलग ही दिख रहा है. अब देखिए पॉलिनोमियल्स, मैं एग्जांपल लूंगा. x पावर 9 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2. इज इट अ बाइनोमियल? No, 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 sir. It is a trinomial because it has the three terms and trinomials in which variable x. Okay, I can denote then like p of x. Any problem? No, no. See here, x is a unknown. X is unknown, and what is the highest power of exponent in this polynomial? तो देखिए यहाँ पे x पावर 9 था, यहाँ पे x पावर 2 है, यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है. तो हाइस्ट पावर क्या है, 9. दैट इज वाई द डिग्री ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल इज हाउ मनी, 9. डिग्री इज 9. तो डेफिनेशन क्या बनी डिग्री की, हाईएस्ट पावर और exponent of unknown variable in polynomial. It's called as degree of that polynomial. आया भाई ध्यान में, और हम एग्जाम्पल्स लेंगे, इसके ज़रिए आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगी. अब देखिए एग्जाम्पल 1 लेता हूँ मैं, जिसमें वही पूछना है कि फाइंड द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स. देखिए पहला x पावर 5 माइनस x पावर 4 प्लस 3. ओके, is it a trinomials? Yes sir, because there are the three terms in polynomial. Okay, I can denote this polynomial like p of x. Okay, up to this no problem. Now see, what is the highest exponent of unknown variables? यहाँ पे 4 था, x पावर यहाँ पे 5 था. That's why 5 is the degree of this polynomial. सिंपल है भाई. और देखिए सेकंड क्या है, 2 माइनस वाई स्क्वेयर माइनस वाई क्यूब प्लस 2y पावर 8. क्या है, ओके, आई कैन डिनोट दिस लाइक p ऑफ y. ओके, देखिए यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 8. देयरफॉर डिग्री बिकम्स 8. जो भी हाईएस्ट रहेगा उसको हमको क्या करना है, चूज करना है. ओके, यहाँ तक नो प्रॉब्लम. अब देखिए हम आगे पढ़ेंगे व्हाट आर द लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिकल पॉलिनोमियल. देन सी, आर यू स्लीपिंग? नो नो नो, यू डोंट हैव टू स्लीप. नाउ सी अगेन, व्हाट इज लीनियर पॉलिनोमियल्स. देखिए डेफिनेशन लिखता हूँ. पॉलिनोमियल्स हैविंग 1 degree, it's called as linear polynomials. सिंपल है भाई, जिस पॉलिनोमियल्स की डिग्री 1 रहेगी उस पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल. जैसे कि 3x प्लस 2
2y 3z plus 2. These are the examples of linear polynomials because in this unknown variables having a power only 1, that means this polynomial having a degree 1. यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 1. अब देखिए अब ये जो लीनियर पॉलिनोमियल था दो टर्म्स में भी मैं लिख सकता हूँ और सिंगल टर्म्स में भी लिख सकता हूँ. इज इट पॉसिबल टू राइट द लीनियर पॉलिनोमियल इन 3 टर्म्स? ट्राई आउट. देखिए अब फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल लेंगे जैसे कि 3x + 2. ओके 3 टर्म्स में लिखना है तो मैं देखिए पहले मैंने 3x से ऐड कर दिया. ओके बट 3x बिकम 6x + 2. नहीं पॉसिबल नहीं था. दूसरा ट्राई कीजिए 3x + 2 था मैंने और 2 ऐड कर दिया 3x बट 2 + 2 बिकम्स 4. इज इट पॉसिबल? नो 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 नो. हाँ हम एक टर्म और 2 टर्म में लिख सकते हैं लेकिन 3 टर्म में नॉट पॉसिबल. देखिए यहाँ पे अगर मैंने 3x² ले लिया तो ये तो फिर पॉलिनोमियल के डेफिनेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा. यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगा 2. एक तो मैं x का जो टर्म रहेगा वही ऐड कर सकता हूँ जैसे कि मैंने यहाँ पे 3x ऐड किया था जो क्या x का टर्म था और सेकंड में कांस्टेंट ऐड कर सकता हूँ लेकिन x का टर्म ऐड करने से जो पहला x का टर्म रहेगा उसके साथ ऐड हो जाएगा. अगर कांस्टेंट ऐड किया तो कांस्टेंट ऐड हो जाएगा. ओके तो देखिए ओके वी आर अनेबल टू राइट द पॉलिनोमियल्स लीनियर पॉलिनोमियल इन 3 टर्म्स. नाउ सी सेकंड quadratic polynomials. What is quadratic polynomials? Simple है quadratic polynomials. A polynomial having 2 degree it's called as quadratic polynomials. एक मिनट लीनियर पॉलिनोमियल में अपन ने स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं लिखा तो देखिए लीनियर पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा ax + b. ओके क्योंकि यहाँ पे x वेरिएबल था तो इसके देखिए स्टैंडर्ड के साथ मैच कीजिए. अब देखिए यहाँ पे ay + b और az + b. जस्ट आई एम चेंजिंग द वेरिएबल्स. ओके अब इसके लिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगा इसके लिए ये. लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में तो यहाँ पे ay + b था. ओके लेकिन यहाँ पे तो एब्सेंट है बट 2y को आप 2y + 0 लिख सकते हैं ना. अब देखिए अब मैच करके देखिए y का जो कोएफिशिएंट था यहाँ पे a था यानी कि a = क्या बन गया 2. और देखिए और एक कंडीशन जो a रहेगा x का कंपोनेंट y का और z का वो 0 नहीं रहना चाहिए. ये पहली कंडीशन है यानी कि जो भी अननोन वेरिएबल रहेगा उसका कंपोनेंट 0 अगर रह गया तो भाई डेफिनेशन सेटिस्फाइड ही नहीं करेंगे ना. अगर ये a0 रहेगा तो 0 × x क्या बन जाएगा 0. फिर ओनली यू हुआ बी कांस्टेंट. इज इट सेटिस्फाइंग द लीनियर डेफिनेशन ना. उसको तो भाई फिर डिग्री नहीं रहेगी ना. ओके समझ में आएगा. अब देखिए अब पॉलिनोमियल्स हैविंग 2 डिग्री इज कॉल्ड एज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स. फॉर एग्जांपल 3x² + 2x + 3. यस ओके हाईएस्ट डिग्री क्या है पॉलिनोमियल में 2. दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स. और एग्जांपल लेता हूँ मैं 2y² + 2. और एक एग्जांपल लेता हूँ मैं 3z². only 3z. These are all the quadratic polynomials because they are satisfying the definition, that is the polynomials having a 2 degree. यहाँ पे भी 2 डिग्री था, यहाँ पर भी था और यहाँ पर भी था. अब देखिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c. ओके वेयर a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0. यानी कि जो भी हाईएस्ट डिग्री का जो भी हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल रहेगा उसका जो कोएफिशिएंट रहेगा वो क्या चाहिए नॉन जीरो अदरवाइज नॉट. अगर ये 0 बन गया तो भाई फिर तो ये 2x + 3 हो जाएगा वो तो लीनियर में चलेंगे.
ओके, यहाँ पे अगर 2y, यहाँ पे अगर 2 0 रह गए तो ओनली 2 बच जाएगा, क्वाड्रेटिक की डेफिनेशन सेटिस्फाइड नहीं करेंगे। अब देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म x वेरिएबल के रहेगा, यहाँ पे सेम y वेरिएबल करेंगे, ऐसा ही रहेगा, और z के लिए। अब देखिए, अब इसको हम ay² प्लस by प्लस c, ओके, इसके साथ कंपेयर करेंगे तो 2y² प्लस 2 प्लस 0 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए कंपेयर कीजिए, a की वैल्यू 2 विच इज अ नॉन जीरो, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 0, नो प्रॉब्लम। देखिए b और c की वैल्यू 0 रही तो चलती, लेकिन a शुड नॉट बी 0। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इफ आई कंपेयर विथ az² प्लस bz प्लस c, ओके, आई गेट, अब देखिए 3z² को 0 z प्लस 0 ऐसे मैं लिख सकता हूँ। अब देखिए a की वैल्यू क्या हो गई 3 विच इज अ नॉन जीरो, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 0, b और c 0 चलेगा लेकिन a नहीं चलेगा। ओके, सच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स आर कॉल्ड एज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब देखिए एक ही बचा है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। व्हाट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल्स? तो देखिए ये भी इजी है। पॉलिनोमियल्स हैविंग 3 डिग्री, polynomials having 3 degree, it's called as cubic polynomials। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल 3x³ गड़बड़ हो गई भाई। 3x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 5, is it a cubic polynomial? Yes sir. Why it is not a cubic polynomial? Because this polynomial having a 3 degree। देखिए यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या था 3 था। ओके, और एक एग्जांपल लेंगे भैया, जैसे कि 2y³ प्लस 2y, is it a cubic polynomial? Yes sir, because this polynomial having a degree 3, क्योंकि y का जो हाईएस्ट पावर था वो क्या था 3। अब देखिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहेगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ओके, और a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। इसके साथ कंपेयर कीजिए तो a की वैल्यू कितनी है 3, b की 2, c की 1, d की 5, और यहाँ पे भी b c d 0 चलेगा लेकिन a तो नहीं पॉसिबल। जैसे कि यहाँ पे देखिए, if I compare with ay³ by² प्लस cy प्लस d, अब देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 2y³ प्लस 0y² प्लस 2 टाइम्स y प्लस 0। अब देखिए, अब कंपेयर कीजिए, a की वैल्यू क्या है 2, b की 0, c की 2, d की 0। ये 0 चल सकता है लेकिन ये नॉन जीरो चाहिए और नॉन जीरो है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ क्या क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब देखिए ये हो गया क्यूबिक, ये हो गया क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 टर्म्स ले सकते हैं। अगर 4 लिया तो देखिए आपको भाई, is 4 terms possible for a quadratic polynomials? No, because if I take example 2x² plus 2x plus 3, ओके, ये भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 2 है। देखिए अगर मैंने यहाँ पे 2x² फिर से ऐड कर दिया तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा भाई, ऐड हो जाएगा, फिर से 3 बन गए। अगर मैंने 2x ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा, इसके साथ ऐड हो जाएगा। अगर 3 ऐड कर दिया तो इस कांस्टेंट के साथ ऐड हो जाएगा, यानी कि ओनली 3 टर्म्स आर पॉसिबल, 3 2 1 पॉसिबल, नॉट 4। और क्यूबिक में भाई 1 2 3 4 पॉसिबल,
5 नॉट पॉसिबल। अगर मैं क्यूब ऐड करूंगा तो यहाँ पे स्क्वायर ऐड करूंगा तो यहाँ पे एक्स ऐड करूंगा तो यहाँ पे कांस्टेंट ऐड करूंगा तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ओके, देखिए 4 पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है, 3 पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है, लेकिन 5 नॉट पॉसिबल। ओके, तो देखिए छोटा सा पार्ट बचा है, जस्ट छोटा सा पार्ट। नाउ कैन यू राइट अ पॉलिनोमियल विथ n डिग्री? Yes, why can't you write? See how to write. Now see, an x power n plus an minus 1 x power n minus 1 plus an minus 2 x power n minus 2 अनंत तक a n minus n x power n minus n। अब देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं अब लूंगा क्यूबिक पॉलिनोमियल 3x क्यूब 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल, व्हाई इट इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल? बिकॉज इन दिस पॉलिनोमियल हाईएस्ट डिग्री हाउ मेनी? 3। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म में डिग्री क्या थी? 3, सेकंड टर्म में 2, फिर बाद में x पावर 1। अब देखिए 2 पावर, यहाँ पे मैं 2 इंटू एक्स पावर 0 लिख सकता हूँ क्योंकि x पावर 0 इज हाउ मेनी? 1। ओके, अगर 2 से मैंने 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देन 1 की जगह मैंने क्या रिप्लेस कर दिया? x पावर 0, यानी कि पावर कैसे होते गया? घटते गया। 3 2 1 0। वैसे ही उन्होंने क्या कहा कि n डिग्री हाईएस्ट क्या रहेगा पहले? यहाँ पे जो भी हाईएस्ट रहेगा वो रहेगा पहले यहाँ पे। ओके, फिर देखिए यहाँ पे हाईएस्ट उन्होंने क्या बोल दिया था? n, फिर n माइनस 1 n माइनस 2 अब 2 n माइनस n। ओके, फिर मैंने क्या कर दिए, ये जो कांस्टेंट थे an माइनस 1 an माइनस 2 an माइनस, मैंने कांस्टेंट चेंज करते गए 3 2 1 लाइक दैट। अब देखिए an x पावर n प्लस an माइनस 1 x पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x पावर n माइनस 2। नाउ सी n माइनस n 0, यानी कि a 0, n माइनस n 0, x पावर 0 and x power 0 is 1. Okay, no need to write. Now see, this is the polynomial having a n degree, but an should not be equals to 0. अगर an 0 बन गया भाई तो x पावर n भी क्या बन जाएगा? 0। फिर वो पॉलिनोमियल इन कौन सा डिग्री हो जाएगा? n माइनस 1। दैट्स वाई an नॉट शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। अब ये क्या है? an माइनस 1 an माइनस 2 a नॉट, these are the constant of that polynomials. Okay, now see, अब एक छोटा सा पॉइंट, व्हाट इज द डिग्री ऑफ, हाँ देखिए, व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल? अब देखिए ये हो गया 0। ओके, 0 इज कॉल्ड अ जीरो पॉलिनोमियल। अब इसकी डिग्री हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? पॉसिबल है क्या? नहीं। दैट्स वाई डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज अनडिफाइंड। व्हाट? अनडिफाइंड। अब देखिए बस एक छोटा सा पॉइंट, आर यू स्लीपिंग बॉयज? नो सर, यू डोंट हैव टू स्लीप। व्हाट इज द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स? ओके, 0 का तो अनडिफाइंड है। अब देखिए कांस्टेंट, फॉर एग्जाम्पल I have taken 2 now, but if I multiply with 2 into 1, no problem. Now see, in place of 1 I can write x power 0. अब देखिए, अब डिग्री जब हम देखते हैं तो वहाँ पे x अननोन वेरिएबल कुछ ना कुछ चाहिए, और यहाँ पे क्या है? अननोन x, और उसका पावर क्या है? 0। दैट्स वाई डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज हाउ मेनी? 0। अब कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल ले लिया आपने, उसको हमने समथिंग वेरिएबल पावर 0 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई, तो डिग्री क्या बन जाएंगी? 0। ओके, अप टू दिस यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम।
तो ये था हमारा आज का पूरा लेक्चर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर मोर वीडियोज।